Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education AI Bharat. Today we have to discuss class 9th NCERT chapter 1 Matter in Our Surroundings. Today we are going to dive deep into class 9 science chapter 1 Matter in Our Surroundings, covering everything from basic NCERT concepts to advanced Olympiad level questions. Grab your notebook and pens because by the end of this lecture all your concept will be crystal clear. First let's look around our room. Books, chairs, air, water, plants, and even ourselves. Where does all of this come from? If we have discussed about all these matters that should be surrounding to ours. So first, ancient Indian philosophers classify all living and non-living things into five basic elements. So we first discuss about these five elements. Five elements. So first element is air, Vayu. Second one, earth, Prithvi. Third one, fire, Agni. Fourth, liquid, water, Jal. And last one, sky, Akas. Modern scientists, however, classify matter based on two major properties. This is as per ancient. This is as per ancient Indian philosopher. But if we discuss about as per the modern scientists, as per modern scientists, how we classify our matters, this is based on properties as per modern scientists. So as per properties, as per two major properties. So first is based on physical properties. Second one based on chemical nature. In this chapter, we will focus exclusively on the physical nature of matter. Basically, we have to discuss in this chapter about only physical nature of matter. So now note down this point: physical nature of matter. Let's write down the heading: what is matter? Anything that occupies space. Space means volume and has mass is called matter. Anything that occupies space and have some mass is said to be matter. Note down this definition. Matter is the first word of our chapter, matter. So anything that occupies space and has some mass is said to be matter. Space means volume. So we already discussed, we grab basic knowledge about only physical nature of matter in this chapter. So let's start. Again, cover in this chapter we have to discuss only about physical nature of matter. So here we discuss about physical nature and characteristics of particles of matter. Note down this basic point: physical nature and characteristics of particles of matter. After introduction, number 2 point: physical nature and characteristics of particles of matter.
Now the question rises, is matter continuous like a solid block of wood, or is it particular like sand? Let's perform a simple activity to understand this. Take a beaker. Let's assume this is a beaker. Take a beaker filled with water. Here is the water. Add a spoonful of salt or sugar. Stir well. Notice that water level does not rise after the salt dissolves. This proves that matter is made up of teeny particles and there are space between particles where sugar or salt molecules easily fit. हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर पानी डाला, फिर हमने चम्मच से स्पून से स्पून से जो है क्या डाला, इसके अंदर नमक या चीनी डाली। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि पूरी की पूरी चीनी या नमक पानी के अंदर घुल जाएगा, लेकिन जो वाटर लेवल हमारा स्टार्टिंग में था, मान लो यहाँ पे था हमारा वाटर लेवल, चीनी घुलने के बाद, नमक घुलने के बाद भी वो वाटर लेवल यहीं पे था जब हमने ये एक्टिविटी करी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वाटर हमारा एक जो है मैटर था, हमने डिस्कस किया एज पर एंशिएंट प्रोब्स। तो वाटर के अंदर जो वाटर के पार्टिकल हैं उसके अंदर क्या है, स्पेस है, और उन्हीं स्पेस के अंदर जो है हमारा शुगर या साल्ट जो है सेटल हो गया। डेफिनेशन में भी हमने बात पढ़ी थी मैटर की डेफिनेशन में भी कि मैटर क्या है, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास। वही स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, उसी स्पेस के अंदर जो है सोल्ट और जो शुगर था वो सेटल डाउन हो गया। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक में है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये एक्टिविटी में आपको समझ आ गया होगा। पहला क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम स्पेस, बिटवीन देम। While making tea, coffee, or lemon water, particles of one type of matter intermix evenly with particles of another type। जैसे हमने यहाँ पे देखा, पानी के पार्टिकल्स में सोल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, सेटल डाउन हो गए। समझ आ गया होगा। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैटर का? नंबर 2 है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। कंटिन्यूसली मूविंग। मैटर के जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी। हमारा जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बिकॉज पार्टिकल्स मूव फास्टर। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है पार्टिकल्स का, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं। यही प्रॉपर्टी हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। दो पार्टिकल्स जो है आपस में अपने आप घुल जा रहे हैं, इंटरमिक्स हो जा रहे हैं, यही कहलाता है डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स लिख लेना, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, टू पार्टिकल्स ऑन देयर ओन, खुद ही घुल जाएंगे, इज सेड टू बी डिफ्यूजन। अब इसमें डिफ्यूजन में आप एक पॉइंट और लिखिएगा, डिफ्यूजन कब बढ़ता है? टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी। तो मैं लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू मोशन, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, जिसकी वजह से मैटर का जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो भी फास्ट हो जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर का जो मोशन है वो भी फास्ट हो जाएगा, इसी की मैं बात कर रहा हूँ।
इसके बाद और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। ऐसा क्या होता है? देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन पार्टिकल्स दैट कीप्स देम टुगेदर, नोन एज द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैटर के पार्टिकल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस अट्रैक्टिव फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन एन आयरन नेल, moderate in water and negligible in a gas। तो मैंने बात करी अट्रैक्ट ईच अदर, इसकी बात हो रही है इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लिख सकते हैं इन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो आयरन नेल होता है, ठीक है, जो कील होती है उसके बीच में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो मैटर हमें एज अ सॉलिड नजर आता है। नंबर टू, हम इसमें जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल है उनमें जो है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो जो हमें वाटर है वो हमें कैसे दिखाई देता है, एज अ मॉडरेट मैटर। यदि मैं गैस की बात करता हूँ तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ठीक है, इसके लिए एग्जांपल आप गैस सिलेंडर का ले सकते हैं, उसके अंदर जो है लिक्विड भरी होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से उनके अंदर क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं एक बात लिख सकता हूँ यहाँ पे, ये बात देखते हुए कि इंटरमोलिकुलर, ये लिखो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन IFA, सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस, किसमें ज्यादा होगा कमेंट में बताना। कंसेप्ट आपको समझ आ गया है किसकी वजह से हो रहा है? ठीक है, आप जो कमेंट में बताना। हिंट दे देता हूँ, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसी के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, क्लास 9 की ये जो पूरी प्ले लिस्ट है, इसमें फर्स्ट चैप्टर से लेके एंड चैप्टर तक एज पर CBSE करिकुलम एंड एज पर ओलंपियाड लेवल्स पूरा बेसिक कंसेप्ट जो है पूरी प्ले लिस्ट में रखा हुआ है, और आप एक एक करके पूरा वीडियो देखिए, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। बीच में वीडियो छोड़ के जाएंगे, चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा और जो कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, हम सिर्फ यहाँ पे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, तो ये बात पूरे एंड ऑफ द चैप्टर आप याद रखिएगा। नाउ वी डिस्कस पॉइंट नंबर 3, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ कोई भी कितनी अवस्थाओं में हो सकता है, बेसिकली हमने कितनी अवस्थाएं पढ़ी आज तक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसी के बारे में बात करेंगे। मैटर प्राइमरीली एग्जिस्ट इन थ्री फिजिकल स्टेट्स, थ्री फिजिकल स्टेट्स। तीनों के बारे में बात करेंगे। पहले आप एक बार ये लिस्ट के थ्रू गो थ्रू हो जाइए पूरा, इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे प्रॉपर्टीज, फिर हमारे जो फिजिकल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और हमने मुख्यतः 5 प्रकार की प्रॉपर्टीज पे जो है पूरा का पूरा कंपैरिजन देखा है तीनों स्टेट्स में। आपको नजर आ रहा होगा, एक एक करके देखते हैं, पूरा समझिएगा दोबारा से। सबसे पहले बात करते हैं शेप की। शेप में आपको दिख रहा होगा, सॉलिड में क्या रहता है, फिक्स शेप, और लिक्विड में अनफिक्स। अनफिक्स क्यों होता है कि पानी को जिसमें मतलब जैसे भी हम मतलब उसमें डालते हैं वो ऐसी शेप ले लेता है, एक शेप्स ऑफ कंटेनर। यदि कंटेनर में डालेंगे तो कंटेनर की शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो जो है एज अ सिलेंड्रिकल की शेप ले लेगा, कोन में डालेंगे तो कोन की शेप ले लेगा, तो अनफिक्स है शेप। यदि मैं गैस की बात करता हूँ तो अनफिक्स है, वो भी सेम है, फिल्स द कंटेनर एंटायरली। काइनेटिक एनर्जी का बताना कमेंट में क्या रहेगा फिर। नंबर 2 है वॉल्यूम की बात। सॉलिड में क्या रहता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत रिजिड होता है, तो यदि हम उस पर किसी हार्ड चीज से हिट करते हैं तो उसका कोई वॉल्यूम में बदलाव आ जाए, नहीं तो कोई बदलाव नहीं आएगा, अपने आप नहीं आएगा। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं लिक्विड में क्या रहता है, उसमें भी जो है फिक्स वॉल्यूम है। गिलास में पानी डालो, वही पानी आप जो है कंटेनर में डालो तो वॉल्यूम सेम रहेगा। उसके बाद में गैस का मैं देखता हूँ, उसका भी अनफिक्स है। तो आपने देखा कि
वॉल्यूम की यदि मैं बात करता हूँ तो दो में फिक्स है, सॉलिड में और लिक्विड में। गैस में फिर से अनफिक्स है। उसके बाद में है कंप्रेसिबिलिटी। यदि मैं उस चीज को दबाऊं, उसके ऊपर कोई फोर्स एग्जर्ट करूं, तो क्या जो है तीनों फिजिकल स्टेट्स में बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले सॉलिड में नेग्लिजिबल, कोई बदलाव नहीं होगा। नंबर टू लिक्विड वेरी स्लो स्लाइड, थोड़ा बहुत हो जाएगा स्लाइटली, ज्यादा नहीं होगा। यदि मैं गैस की बात करता हूँ तो हाई मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगा, हाथ में ही नहीं आएंगे, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं तो आप उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में पार्टिकल मोशन, तीनों फिजिकल स्टेट्स में जो जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड में। तो सॉलिड के अंदर वाइब्रेट ओनली एट फिक्स पोजीशन, एक फिक्स पोजीशन पे जाके वो जो है वाइब्रेट करते हैं। यदि मैं लिक्विड में देखूं तो स्लाइड पास्ट ईच अदर, पहले जो सबसे आगे पार्टिकल है वो जो है सबसे पहले जो है उसमें मोशन आएगा, उसके बाद में फिर दूसरा, एक साथ नहीं सब में आएगा, मतलब ट्रांसफर होता जाएगा। यदि मैं गिलास के अंदर पानी को हिलाऊं तो ये नहीं है कि उसके सारे पार्टिकल एक साथ जो है उसमें जो है मोशन आए, नहीं, पहले जो सबसे ऊपर के पार्टिकल थे उसमें मोशन आया, फिर उसके नीचे ऐसे करके। यदि मैं बात गैस की करता हूँ तो उसमें फ्री एंड वेरी रैपिड मूवमेंट है गैस के अंदर। तो नंबर लास्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाली, हुई उसी की बात हो रही है। तो सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो आप नोट करना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड मैक्सिमम। लिक्विड में क्या होगा, मॉडरेट होगा, 50-50। गैस में मिनिमम और नेग्लिजिबल, बहुत ही कम। ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हमारी तीन फिजिकल स्टेट जो है मैटर की एग्जिस्ट करती हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पे क्या क्या फिजिकल स्टेट्स में बदलाव आते हैं। मुख्यतः हमने 5 प्रॉपर्टीज पे बात करी। फर्स्ट इज शेप, एंड देन वॉल्यूम, एंड देन कंप्रेसिबिलिटी, नंबर 4 पार्टिकल मोशन, एंड लास्ट वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ओलंपियाड एंड सीबीएसई प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो कंसेप्चुअल और हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा मजा आएगा करने में। समझना, पहले कंसेप्ट को समझना, क्या है क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज बाय। सादी भाषा में समझाता हूँ कि गर्म खाने की जो खुशबू होती है वो हमें बड़ी जल्दी आ जाती है। जैसे मम्मी किचन में खाना बना रही है तो उसकी खुशबू हमें बहुत जल्दी आ जाती है। वही खाना यदि ठंडा होता है तो उसकी स्मेल हमारे तक बहुत लेट पहुंचती है। कारण क्या है, ठीक है, तो उसका रीजन कमेंट में बताना। अब डिस्कस करते हैं क्या बनेगा। जो हॉट फूड है उसकी जो स्मेल है वो जल्दी पहुंचती है, रीचेस अर्ली। बट जो कोल्ड फूड है, जो ठंडा खाना है, उसकी स्मेल क्यों नहीं पहुंचती, उसके जो स्मेल है, वो खुशबू है, वो क्यों हमें लेट पहुंच रही है। जो स्मेल है रीचेस लेट, क्या रीजन हो सकता है। तो इसका रीजन है, मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट समझाया था इसमें फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में, वही रीजन है। मतलब कि गर्म खाने का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो जो जैसा भी वो मैटर है, सब्जी मान लो, सब्जी मानते हैं, थोड़ी देर के लिए वो कोई सब्जी ले लेते हैं, मान लो पनीर की सब्जी है, तो पनीर हमारा किस में आएगा, सॉलिड है थोड़ा सा, और लिक्विड भी है, उसके अंदर पानी भी डाला गया है, तो मिक्सअप है, मतलब उसमें सॉलिड भी है, वो जो है लिक्विड भी है। तो आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, जो पनीर के जो पार्टिकल्स हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनका जो टेम्परेचर है जितना ज्यादा बढ़ेगा, इससे क्या होगा, पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई। ठीक है, यदि मैं हॉट फूड की बात कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी पार्टिकल्स की, इसकी वजह से क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन, मैंने बताया था आपको, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सुगंध स्मेल की जो ट्रेवलिंग थी वो फास्टर हो गई थ्रू एयर। ठीक है, स्मेल ट्रेवल बिकम इजी थ्रू एयर। समझाने के तौर पे ये है, यदि आंसर लिखना आता है तो क्या लिखेंगे, एज द टेम्परेचर राइजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेपर पार्टिकल इंक्रीजेस।
which increase the rate of diffusion, allowing the smell to travel much faster through the air. आपको समझ आ गया होगा कि गर्म खाने की खुशबू हमारे नाक तक क्यों जल्दी पहुंची। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ए स्पंज इज अ सॉलिड येट वी कैन इजिली कंप्रेस इट बाय। स्पंज आपने देखा होगा गद्दा टाइप सा होता है, बहुत सारे जो हमारे घर के अंदर बेडरूम्स में जो गद्दे लगते हैं उसमें भी स्पंज आता है, देखा भी होगा आपने, यूज भी किया होगा। सामान खरीद के लेके आते हैं उसमें भी स्पंज आता है ताकि उसका कोई हिस्सा ना टूटे, ताकि स्पंज वो जो फोर्स है जो बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दे तो वो स्पंज उसको जो है अपने ऊपर ले लेता है, जिससे कि अंदर की जो एक्सटर्नल जो इंटरनल चीज है वो सेफ रहती है। तो स्पंज आपने देखा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि स्पंज सॉलिड है, स्पंज को हमने हाथों से प्रेस किया, तो जब हमने उसको प्रेस किया तो वो सॉलिड होते हुए, क्योंकि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और मैंने आपको कंप्रेस का जो इसका प्रॉपर्टी बताया था उसमें क्या था, नेग्लिजिबल था। अब देखना जाके एक बार, तो जब नेग्लिजिबल था तो स्पंज सॉलिड होते हुए, स्पंज सॉलिड है, वो कंप्रेस क्यों हो गया? हमें पता है एक सीन जो है नेग्लिजिबल है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है, और सॉलिड होते हुए वो कंप्रेस क्यों हो गया? क्वेश्चन इज दैट, क्या रीजन हो सकता है, कमेंट में बताना। तो आंसर इसका है कि स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड। स्पंज के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्र के अंदर हवा ट्रैप हो जाती है, और उन्हीं हवा की ट्रैप होने की वजह से जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकलती है, जैसे ही हवा बाहर निकली तो क्या होगा, तो जैसे ही हवा बाहर निकलेगी वो कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, ए स्पंज हैज माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन यू प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, which is why it compress easily. However, it is still classified as a solid because each piece of sponge has a definite shape and volume. ये बड़ा जरूरी लाइन है, मैंने क्या बोला, स्पंज, नोट डाउन भी करिएगा आप इसे, स्पंज इज स्टिल क्लासिफाइड एज अ सॉलिड बिकॉज ईच पीस ऑफ स्पंज, स्पंज का हर हिस्सा, each piece of sponge has a definite shape of and volume, has a definite shape and volume। स्पंज के हर हिस्से की जो शेप है उसकी एक वॉल्यूम है और एक शेप है, डेफिनेट शेप है। तो यहाँ तक आपको ये दो क्वेश्चन समझ आए होंगे, कंसेप्ट है दोनों के अंदर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद अब बात करते हैं नंबर 4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर अपनी स्टेट भी चेंज करता है? प्रॉपर्टीज में तो हमने देख लिया, ये तो है नहीं कि जो प्रॉपर्टीज उसकी हैं वो हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो क्वेश्चन दिमाग में आना भी चाहिए कि क्या स्टेट भी चेंज करता है। तो आंसर है यस, चेंज करता है। किस वजह से चेंज करता है? बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। नोट डाउन, बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। यदि आप प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो स्टेट चेंज करेगा। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सो सबसे पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज में हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, फिर जो है लेटेंट हीट, बॉइलिंग पॉइंट एंड लास्ट वन सब्लिमेशन। उसके बाद आएंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यदि मैंने दो पॉइंट लिखे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करने से स्टेट में बदलाव होता है, तो टेम्परेचर में हम बात करेंगे बेसिकली अबाउट 3 पॉइंट। सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट, सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे लेटेंट हीट पे। ये सब बातें एज पर सीबीएसई करिकुलम है, आप नोट डाउन करके चलिएगा लेटेंट हीट के बारे में। उसके बाद में लास्ट वन, लास्ट वन बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद में सब्लिमेशन।
चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या चेंज जो है इनकी वजह से टेम्परेचर में आ रहा है और टेम्परेचर में बदलाव आने की वजह से स्टेट चेंज हो रही है। देखते हैं क्या ऐसी बात है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। A1 मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले वही देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम टू लिक्विड। एक वो तापमान, एक वो टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स टू लिक्विड, इट इज सेड टू बी मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर हो गया। लेकिन ये कन्वर्ट किस पे होगा, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर, ये लिखना नहीं बोलना है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो एक तो सॉलिड लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है, जब वो उसका टेम्परेचर जो है, एक वो टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये समझ आ गया होगा। मैंने डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता दी। यदि मैं आइस का मेल्टिंग पॉइंट देखूं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस पहले सॉलिड होता है, पहले सॉलिड है, फिर वो कन्वर्ट होकर वाटर बन जाता है। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 2273, 50 केल्विन। ये केल्विन में है, यदि इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया होगा। तो जब आइस सॉलिड में होता है तो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये आपको समझ आ गया होगा। तो टेम्परेचर के अंदर पहला था मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट हमने देखा। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2, लेटेंट हीट। ये क्या चीज है लेटेंट हीट, इसके बारे में देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट हमें, हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन किस पे, एट एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। अगेन मैं बहुत बात कर रहा हूँ, डेफिनेशन अधूरी रह जाएगी यदि ये पढ़ नहीं डाला। 2 नंबर का क्वेश्चन यदि आएगा, आप यदि लिख भी दोगे कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इज सेड टू बी लेटेंट हीट। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिलेगा। यदि आप इसमें ये भी जोड़ दोगे कि द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, लेकिन कितना सॉलिड, 1 kg, इज सेड टू बी लेटेंट हीट। तो नंबर 2 मैंने बात करी लेटेंट हीट की। क्या लेटेंट हीट, सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, लेकिन सॉलिड होना चाहिए 1 kg भाई, लेकिन किस पे, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर, एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ, कहीं कहीं आप इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पढ़ोगे। तो मैं यही ऐड कर रहा हूँ ये वर्ड भी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बात एक ही है, कहीं कहीं खाली लेटेंट हीट भी पढ़ोगे, शब्द दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत होना। वाई डज टेम्परेचर नॉट राइज ड्यूरिंग दिस चेंज। इसके दौरान टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, बिकॉज द हीट एनर्जी इज एंटायरली यूज्ड अप इन ब्रेकिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स विदाउट रेजिंग द काइनेटिक एनर्जी। इस दौरान पूरी की पूरी हीट एनर्जी इसमें यूज हो जाती है। जो 1 किलो जो सॉलिड है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए बिना काइनेटिक एनर्जी बढ़े, ये इसमें अलग है, ये देख लेना आप। उसके बाद बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। लिक्विड का वो तापमान एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब वह बॉइल करना स्टार्ट कर दे, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ए पॉइंट एट विच बॉय लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज सेड टू बी बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल कर जाता है। केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन। कन्वर्जन के ऊपर यदि आप एक अलग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताना कि केल्विन से सेल्सियस में कैसे लेके जाएं और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे लेके जाएं।
तो उसका सारा बेसिक का यदि आप एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, उसमें पूरा समझा देंगे। सॉरी, ये 373 होगा क्योंकि फॉर्मूले में 273 प्लस होता है 100। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट बचा है हमारा एक और, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन भी टेम्परेचर में ही आएगा जिससे कि सॉलिड कन्वर्ट होगा। नंबर 4 क्या है? सब्लिमेशन। ये क्या होता है? डायरेक्ट चेंज ऑफ स्टेट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड का डायरेक्ट लिक्विड में ना जाके सीधा गैस में कन्वर्ट होना, बिना चेंजिंग हुए लिक्विड के, विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, लिक्विड में बिना चेंज हुए। जैसे आपने कपूर की गोली देखी होगी, जब पंडित जी जलाता है उसमें आग लगाते हैं, वो पहले सॉलिड होती है और तुरंत वो जो है बिना लिक्विड में जाए गैस धुआं धुआं उठने लगता है। कैम्फोर की गोली जो हमने बोला है, तो एग्जाम्पल आप लिखना, कैम्फोर। दूसरा एल्यूमिनियम क्लोराइड, नेपथलीन की जो बॉल्स होती हैं, वॉशरूम में जो यूज होती है, अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन भी बोल देते हैं। ठीक है, वो भी डायरेक्ट यदि आप उसको जलाओगे तो वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, धुआं धुआं हो जाएगा। तो ये आपको समझ आया होगा कि यदि मैं स्टेट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सॉलिड को कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ, टेम्परेचर या प्रेशर। टेम्परेचर में मेल्टिंग, लेटेंट हीट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सब्लिमेशन, 4 तरीकों से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद बात करते हैं, नंबर 2 मैंने बताया था प्रेशर। प्रेशर का भी देख लेते हैं, इतना होने के बाद अब बात करते हैं बी पॉइंट बनेगा हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम प्रेशर में भी बदलाव करके स्टेट को चेंज कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। ठीक है, एक तो हाई प्रेशर अप्लाई करके, बाय अप्लाई हाई प्रेशर, एक तो ये हो गया। दूसरा एंड लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को डाउन करके, समझाया, टेम्परेचर को कम करके। जैसे कि आपने एलपीजी में देखा होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है, वो ये और जो दूसरी सीएनजी होती है, इनमें क्या होता है, दोनों इसके प्राइम एग्जांपल है, दोनों में हाई प्रेशर से जो है अप्लाई करके इनको अंदर भरा जाता है। ठीक है, तभी ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है और ये कंप्रेस हो जाती है हाई प्रेशर। ठीक है, और इन्हीं की वजह, हाई प्रेशर अप्लाई करने की वजह से कभी आपने महसूस किया हो, कभी सिलेंडर खोला हो तो ठंडी ठंडी आती है गैस। ठीक है, वो क्यों हुआ? क्योंकि हाई प्रेशर अप्लाई करके उसको अंदर डाला जाता है। तो जब आपने महसूस किया होगा जो वो ठंडा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका टेम्परेचर कम हो गया है, क्योंकि स्टेट को हमने चेंज किया है। तो वो बाय द इफेक्ट ऑफ प्रेशर के चेंज होने की वजह से हुआ है। दूसरा आपने देखा होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी जो है हाई प्रेशर स्टोर होता है, जैसे कि ड्राई आइस। ड्राई आइस, उसमें क्या होता है, उसमें CO2 को जो है हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है, जिसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं, सॉलिड CO2 भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सॉलिड CO2 जो है किसे बोलते हैं, तो सिंपल आंसर है ड्राई आइस। तो उसको भी हाई प्रेशर जो है फिल करते हैं, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस CO2 में। ठीक है, विदाउट पासिंग थ्रू दी लिक्विड स्टेट। ठीक है, जो सॉलिड CO2 होता है जिसे ड्राई आइस बोलते हैं, वो डायरेक्ट कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैसियस CO2 में, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर। समझा गया होगा? तो ये आपने देखा कि कैसे टेम्परेचर में चेंज होने की वजह से हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा प्रेशर को चेंज करने से कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है बचा हुआ है, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 5, नंबर 5 की बात करते हैं, इवेपोरेशन एंड कूलिंग।
इवेपोरेशन एंड कूलिंग एंड कूलिंग। बस ये समझो, ये लास्ट है इसका, फिर चैप्टर खत्म हो रहा है। इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन होता है ए फिनोमेना इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लिक्विड किसमें चला जाता है? वेपर में चला जाता है। लिक्विड से सीधा वेपर, वाष्प बन जाता है, पानी का सीधा वाष्प बन जाता है। किस टेम्परेचर पे? एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। थोड़ा मैंने टेक्निकली लिखा है बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा समझते हैं। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, किस टेम्परेचर पे हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट से कम पे। यही क्या होगा? इवेपोरेशन। वाष्पीकरण, हिंदी में बोलते हैं वाष्पीकरण। ओके, ये क्या होता है? एक सरफेस फिनोमिना। सीबीएसई क्वेश्चन सरफेस फिनोमिना से भी पूछ सकता है। एक्सप्लेन अबाउट सरफेस फिनोमिना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सरफेस फिनोमिना का क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वो इवेपोरेशन के बारे में जो आपसे लिखवाना चाहता है। तो सेम बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। फिनोमिना तो ये आपको समझ आया होगा, इसको सरफेस फिनोमिना भी बोलते हैं। तो कुछ फैक्टर भी हैं, जैसे इवेपोरेशन की हमने बात करी, इसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट भी करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में बात करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा। गरम गरम आपने सब्जी बनाई, ठीक है, अब वो बहुत गर्म है। अब एक तो मैं उस सब्जी को किसी छोटे बर्तन में डालूं, एक मैं उसको बड़े प्लेट में डालूं, तो आपको क्या लगता है कि किसमें वो जल्दी ठंडा होगा? और वो ठंडा क्यों हुआ है? वहां भी जो है इवेपोरेशन काम कर रहा है। छोटे बर्तन में वो ठंडा लेट होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। यानी कि सरफेस एरिया जितना कम है उतना ही कम इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन कम होगा, कम होने की वजह से वो ठंडा लेट होगा, तो हमें खाने में टाइम लगेगा। नंबर टू क्या है? जो हमने बड़े बर्तन में डाला है, यानी कि प्लेट टाइप में डाला है, वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। तो वो जो सामान उसके अंदर रखा हुआ था बड़े बर्तन के अंदर, वो ठंडा जल्दी हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा? तो मैं लिख सकता हूँ कि इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। तो ऐसे लिख लीजिए, सरफेस एरिया यदि बढ़ता है, अप एरो का मतलब है बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता है तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। तो एक तो सरफेस एरिया अफेक्ट करता है इसको, इवेपोरेशन को। नंबर टू और क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मोर पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी आएगी तो वो क्या है? जल्दी जल्दी मूव, उनके अंदर मोशन होगा, तो क्या होगा? वो वेपर स्टेट में चले जाएंगे, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर स्टेट में बहुत जल्दी जाएंगे। तो टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है इसको, एवेपोरेशन को। ठीक है, और क्या फैक्टर अफेक्ट करता है? ह्यूमिडिटी, आर्द्रता। ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करता है? A decrease in the amount of water vapor present in the air increase evaporation rate। यदि हवा के अंदर पानी के कण कम मौजूद हैं, पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो कम मौजूद हैं, तो उसकी वजह से भी जो है इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब जुलाई से
अगस्त का महीना चलता है, बारिश वाला महीना चलता है, तो उस टाइम पे ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा जो रहता है। तो क्या होता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा दिक्कत हवा के अंदर जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहते हैं उनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से धरती का जो पानी है तो वो बहुत जल्दी जो एज ए वेपर स्टेट में बन के ऊपर जाता है, जिससे कि जैसे ही ह्यूमिडिटी अब वाला जो है स्टेट बनता है तो बारिश जल्दी होती है। क्यों हुई? क्योंकि वाटर वेपर कम हो गए और पानी का जो वेपर स्टेट में जाना बहुत जल्दी स्टार्ट हुआ, ऊपर जाके बादल बना और जो वेपर बन के जो पानी ऊपर गया था वो एज अ रेन जो है नीचे आता है। तो जुलाई से अगस्त के महीने में यही फिनोमेना देखने को मिलता है ह्यूमिडिटी का। तो क्या लिखना पड़ेगा? ये लिखना इसमें कि वाटर वेपर एयर में जो प्रेजेंट है इन एयर वो यदि कम हो जाए, ठीक है, तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। इवेपोरेशन रेट बढ़ जाता है। तो जो इवेपोरेशन रेट बढ़ेगा, तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है बारिश होती है, वो इवेपोरेशन का मतलब है कि पानी ज्यादा जा रहा है ऊपर, तो जब ज्यादा जाएगा तो बादल भारी होगा और पानी वो जो बादल है वो बारिश करेगा। बहुत सुंदर एग्जांपल है, उससे रिलेट करिएगा तो समझ आ जाएगा तुम्हें। उसके बाद में लास्ट इफेक्ट इसका क्या है? विंड स्पीड। विंड स्पीड में क्या होता है? एन इंक्रीज इन विंड स्पीड रिमूव वाटर वेपर पार्टिकल्स अवे एक्सीलरेटिंग वेपोरेशन। हवा के अंदर जो वाटर वेपर पार्टिकल्स मौजूद हैं, यदि हवा चलेगी वो वाटर पार्टिकल हवा में मौजूद है वो साइड हट जाएंगे। तो जब वो साइड हटेंगे, जो पानी ऊपर की तरफ जा रहा था इवेपोरेट हो गए, उसकी भी जो स्पीड है, उसका भी जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगा। जब उसका एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? ये इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करेगा। इसी के बारे में बात करी गई है। तो मैं क्या लिखूंगा? यदि विंड स्पीड बढ़ती है, मैं सीधा स्पीड ही लिख रहा हूँ, स्पीड यदि बढ़ता है, विंड स्पीड यदि बढ़ता है तो इवेपोरेशन रेट बढ़ जाएगा। मूविंग अवे ऑफ एयर पार्टिकल्स, मैं ये लिख देता हूँ कि हवा के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद हैं वो दूर भाग जाएंगे, उनका मोशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट आपने समझे। सरफेस एरिया में सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर में क्या? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो पानी वेपर में ज्यादा जल्दी जाएगा। थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर एयर के अंदर जितने कम होंगे उतना ज्यादा उसका इवेपोरेशन रेट होगा। लास्ट वन इज विंड स्पीड। विंड स्पीड जितना ज्यादा होगा, हवा के अंदर जो वाटर वेपर मौजूद है वो अवे थ्रू जाएगा। जब वो अवे थ्रू जाएगा तो इस वजह से इवेपोरेशन का जो रेट है वो जो वो है कम, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ड्यू टू एक्सेलरेशन। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वाई डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग? इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होती है? तो बड़ा ही सुंदर आंसर है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन द लिक्विड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स to compensate for the energy lost during vaporization. The absorption of heat from the surroundings makes the surrounding cold. Example, wearing cotton clothes in summer or feeling cold when acetone nail polish remover is put on your palm. तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग क्यों होता है? मैं सीधे लिख रहा हूँ, इवेपोरेशन है तो वो कूलिंग क्यों कर रहा है? वो कूलिंग तो सीधा सीधा समझा देते हैं कि लिक्विड जो पार्टिकल है वो सराउंडिंग से एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली summarize what we have covered today. Number 6. Number 6, summary and conclusion of the whole chapter. Summary and conclusion. पूरे चैप्टर का क्या निचोड़ बनता है उसके बारे में बात करते हैं। So let's we quickly summarize and what we have conclude today. Physical nature and particles nature of matter, ये हमने बात करी। फिजिकल नेचर, सबसे पहले फिजिकल नेचर के बारे में बात करी, फिजिकल नेचर एंड पार्टिकुलर्स मैटर, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, उसके बारे में बात करी हमने। 3, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स, उसके बारे में बात करी हमने। डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, जो हमने टेबल आपको दिखाई थी, डिटेल कंपैरिजन नोट डाउन कर लीजिएगा। पूरा ओवरव्यू भी है चैप्टर का, कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स,
liquid and gases. And the fourth one, स्टेट क्यों चेंज होती है, रीजन बताया था, मेल्टिंग पॉइंट का अलग बताया था, टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला, चेंज ऑफ स्टेट, हीट एंड हीट भी उसमें बताया था, बन की जी याद होगा, एंड सब्लिमेशन डायरेक्ट सॉलिड से गैस में, और लास्ट हमने कवर किया था इवेपोरेशन और उसको अफेक्ट क्या क्या चीजें करती हैं, इवेपोरेशन एंड इट्स कूलिंग इफेक्ट। तो ये हमने सब डिस्कस किया। सो मेक श्योर टू रिवाइज योर नोट्स थ्रोली एंड अटेम्प्ट ऑल एक्सरसाइज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में आता है तो आप कमेंट करिएगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर वेयर वी विल स्टार्ट चैप्टर 2। मिलते हैं चैप्टर 2 के साथ। चैप्टर 2 भी इससे ही जुड़ा हुआ है, मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। So keep learning, stay motivated, and all the best. If any doubt regarding this chapter and all the exercises given in this chapter, so you have comment on that video, and we will 100% sure we will provide a genuine topic and conceptual clear answers to you. And stay motivated, stay healthy. All the best. Jai Hind, Jai Bharat.